Hello student, this is exercise 6.2. Question number first. In this question, it is said that you find the values of x and y and then show that AB parallel CD. So just see the solution of the question. At first we will find out the value of x and y. Just see here with this 50 plus x, they are making the linear pair. अगर इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दो तो स्ट्रेट लाइन बनती है. दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर एंड सम ऑफ लीनियर पेयर एंड द लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180. तो वी कैन राइट कि 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180. It is linear pair. Now we can get the value of x from here. It is 180 degree minus 50. So x equal to 130. So we got the value of x. Now we can get the value of y. And it is simple to get the value of y because 130 and y are the vertically opposite angle. So you can write y equal to 130 degree vertically opposite angle. Okay. So we are looking here that the value of x is 130 as well as the value of y is also 130. If these two angles are equal, so we know that these two angles are alternate angle, but these angles are alternate angle. You may write also alternate interior angle, and when the alternate angles are equal, then lines are parallel. So this is the solution of question number first. Now we will see the next question. Question number 2. Just see in the question. Question number 2 is here. Figure is given and AB parallel CD, CD parallel EF, Y ratio Z equal is given. And then we have to find out x. So just write down the figure, draw the figure. So this is question number 2. A, B, C, D, E, F. And this line is here Z, Y, this one is X, this is Y, and here is Z. Okay. Now the ratio of Y and Z, it is given that AB parallel CD and CD parallel EF. And then also given Y ratio Z equal to 3 ratio 7. So to find x, this is the question. Y and Z, ratio of Y and Z is given 3 ratio 7. So come to the solution. We let Y equal to 3k and Z equal to 7k. रेशियोज को हमने k में कन्वर्ट कर लिया. अब आप देखो कि जितना ये y है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे है, तो ये और ये इक्वल होगा. ओके. और फिर ये जो होगा यहाँ पे y होगा और ये z, ये दोनों मिलके 180 बनाएंगे. y plus z equal to 180. This is called sum of interior angle. इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है क्योंकि ये y है तो यहाँ भी सेम वही एंगल आएगा. अब हमारे y की वैल्यू है 3k और z का 7k, तो यहाँ से हम लोग k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. 10k इक्वल टू 180, तो k इक्वल टू 180 बाई 10, k इक्वल टू 18. k की वैल्यू 18 मिल गया है तो हम y और z की वैल्यू पता कर सकते हैं.
तो y इक्वल टू y की वैल्यू को हम लोगों ने लिया था 3, तो y इक्वल टू 3 इंटू 18 दैट इज 54। y की वैल्यू हमको 54 मिल गया, हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस वाई ऑल्सो x प्लस वाई इक्वल टू 180, ये भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल है। तो x की जगह पे x ही रहेगा, y में हमने 54 डाला इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 180 माइनस 54, सो x इक्वल टू 126, तो x की वैल्यू आ गया 126। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। Look here, figure is given. So draw the figure at first. In this figure, it is A, it is G, F, B. This is C, this is D. Here is right angle. Okay. I am given that AB parallel CD, given AB parallel CD, EF perpendicular CD, EF perpendicular CD, GED angle GED equal to 126 degree. To find angle AGE, comma angle GEF, comma angle FGE। तो इन तीनों एंगल को फाइंड करना है। देखो यहाँ पे 90 बन रहा है और इस GED का G यहाँ पे E है, तो GED ये प्लस ये दोनों मिलके 126 है। तो GED का सीधे सीधे अल्टरनेट एंगल यहाँ बनता है, इस दोनों का अल्टरनेट एंगल यहाँ बनता है, तो AGE इक्वल हो जाएगा उसके। सॉल्यूशन, एंगल GED इक्वल एंगल AGE, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो GED की वैल्यू जितनी थी उतना ही AGE भी होगा। फर्स्ट हो गया। GEF निकालना है, तो GEF 126 से 90 माइनस कर दो, एंगल GEF इक्वल टू 126 माइनस 90 डिग्री एंड दिस इज 36 डिग्री। एक आंसर ये है, दूसरा आंसर ये, और थर्ड वन एंगल FGE, ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बनाता है। तो लीनियर पेयर 180 से ये वाला 126 माइनस कर दें तो हो जाता है एंगल FGE इक्वल टू 180 माइनस एंगल AGE, तो 180 माइनस 126, $54। So this is the solution. This is the solution of question number 3. Move to the question number 4 here. Question number 4.
फिगर पी क्यू पी क्यू आर एस टी। This is 110 degree and this one is 130 degree. ओके, फाइंड करना है तो फाइंड एंगल क्यू आर एस। क्यू आर एस मतलब इस एंगल को फाइंड करना है। कंस्ट्रक्शन लेते हैं, ड्रॉ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें आप, एम एन ले लिया और ये पैरेलल होगा इन दोनों के। ड्रॉ एम एन पैरेलल पी क्यू पैरेलल एस टी। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। अब देखो आप, ये Q और ये एंगल, इसको मान लिया एंगल 1, इसको ले लिया एंगल 2। तो Q और एंगल 1 दोनों मिलके सम ऑफ इंटीरियर एंगल बनाएंगे तो 180 होगा। तो सॉल्यूशन में आओ, एंगल Q प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 110, तो एंगल 1 इक्वल टू 70। ऑल्सो एंगल 2 प्लस एंगल S इक्वल टू 180, तो एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 130, तो दैट इज 50 डिग्री। तो हमको ये मिल गया, ये मिल गया, और इसके साथ अगर इसको ले लेते हैं तो 180 होता है, लीनियर पेयर बन जाता है। तो एंगल 1 प्लस क्यू आर एस प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, ये भी लीनियर पेयर है। 1 की वैल्यू है 70, क्यू आर एस की वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू है 2 की वैल्यू है 50। 70 प्लस 50 120 होता है। तो क्यू आर एस इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 60 डिग्री, एंड दिस इज द आंसर। ओके।